ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਥਾਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਚਿਆ। ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਾਂ ਉਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਮਰੇ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨੇ। ਤੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ। ਥੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਗਰ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਜੀ ਸਿਟੀ ਟੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੁਬਈ ਸਿਟੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਲੌਗ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਬਣ ਜਾਣੇ ਇਸੇ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗ ਦੇਖਿਓ, ਰੂਟੀਨ ਚ ਡੇਲੀ ਬਲੌਗ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਉਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੈਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 1 GB ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਮੰਨ ਲਓ 50,000 ਬੰਦਾ 1 GB। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 GB ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, 1000 ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਚੱਲ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। 50,000 ਮੰਨ ਲਓ 26 ਲੱਖ ਦਰਾਮ ਆ ਬਹੁਤ। ਬਾਕੀ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਣੀ। ਬਸ ਕੱਲਾ ਰੂਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੈ ਵਾਈਫਾਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਆ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਆ ਅਲਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਜਿਹਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਆ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ? ਚਲੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਗਏ 10। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਗਰ ਤਰਸ ਗਿਆ। ਤੜਕੀ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਆ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨੇ ਬਈ ਬਸ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਲਾ ਦੋ ਜੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ। ਲੌਕ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਲਿਫਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਖੁੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਦੱਬ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਬਦੇ ਉਧਰ ਆ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਹੋਰ ਆ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਤੇ ਆ ਗਈ, 1 ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਆ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਫਰਮਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਲੂਗੀ। ਆ 1 ਤੇ 2 ਖੁੱਲ ਜਾ। ਸਿਮ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਰਮਾਲ ਬਟੂਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲੂਗੀ। this one ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਗਰ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕਿਹਾ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਹੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਘੈਂਟਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਘੈਂਟਾ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਮਾਛਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਟੁੱਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆ ਨੀਚੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿੱਕਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੰਗਾੜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲੌਬੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੱਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਦੁਬਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਟੂਰ। ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਘਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਆ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਨੇ। ਆ ਖੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁੰਜਾ ਲਾਈਆਂ ਪੈਂਦਾ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਬੱਸ ਵੀ ਵਾਲੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਨੇ, ਭਜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਨੇ, ਭਜਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਰਾ ਰਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਭਾਈ। ਚਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ ਬਾਰੇ। टाइम कितना हो लगेगा यहाँ पे? पूछ लो।
ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਗਰੋਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਚਾਰਜ ਨੇ ਜੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਜੇ ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਭੁੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਈ। ਹੋਰ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਪੂਰੇ 1 GB ਮਿਲ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਰ ਆ। ਹਾਂ ਉਰੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਹਾ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ। ਦੁਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖੜਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਚੱਲਦੇ। ਪਾਲੀ ਸਿਮ ਚੱਲ ਪਈ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਲੀ ਬੰਬ ਸਿਟੀ ਆ ਜੀ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਓਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਜੋ ਹੁਣ Sorry for the inconvenience, but we will set the mic. But meanwhile जो मुझे आपको डिटेल्स देनी है तो मैं आपसे ऐसी बात करूँगी। ओके एवरीवन, मेरा नाम निहारिका है। मैं आपकी टूर गाइड हूँ। आज आपका हाफ डे दुबई सिटी टूर का टूर है। हम यहाँ से दुबई के कुछ साइट सीन्स करेंगे, कुछ कार में करेंगे, बस से करेंगे और कुछ हम स्टॉप्स लेंगे। ठीक है, मैं इंडिया से हूँ और 12 साल से दुबई में हूँ और दुबई और आबू धाबी की गाइड हूँ। इंडिया में बॉम्बे से हूँ। तो आज जो हमारा हाफ डे दुबई सिटी टूर है तो हम कुछ तो कंट्री के बारे में जानेंगे, कुछ ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो आप जिस कंट्री में आए हैं इसका नाम आप लोगों को पता है क्या है? कौन सी कंट्री में आए हो आप लोग? अरे वीजा पे लिखा हुआ है, ऐसा मत बोलो। दुबई कंट्री नहीं है भाई, ये गलत आंसर है। हाँ ये करेक्ट आंसर है। हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस कंट्री का नाम है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है 2 दिसंबर 1971 को बनी है। तो और इस कंट्री के 7 स्टेट्स हैं। तो जो 7 स्टेट्स अभी हैं 71 के पहले वो कंट्री थे। यानी 71 के पहले आप कहते हैं दुबई एज अ कंट्री, तो यस दुबई तब कंट्री थी, बट अब एक स्टेट है। तो 1971 में जो 7 स्टेट मिलके एक कंट्री बने, जो कंट्री मिलके एक स्टेट बने, सॉरी 7 कंट्री मिलके एक कंट्री बनी, वो है आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फुजैरा, रस अल खैमा, अल क्वीन। सो ये 7 कंट्री मिलके एक कंट्री बने 2 दिसंबर 1971 को। अभी 2 दिसंबर को 52nd नेशनल डे है इस कंट्री का। अब ये जो कंट्री है ये इस्लामिक कंट्री है। अरबिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और 10.2 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें से ऑलमोस्ट 14% यहाँ के लोकल हैं, 27% इंडिया से है, 14% पाकिस्तान से है और बाकी मिक्स्ड अलग अलग कंट्रीज से हैं। ये जो कंट्री है यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यानी हर एक स्टेट में राजा है और राजा राज करते हैं। तो यहाँ पे 7 स्टेट के 7 रूलर्स हैं। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट है। तो जो दुबई के राजा हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, वो यूएई के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट है, करंट रूलर ऑफ दुबई। और जो आबू धाबी के रूलर हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान, वो यहाँ के प्रेसिडेंट है, 3rd प्रेसिडेंट है और आबू धाबी के रूलर हैं। तो ये जो कंट्री है ये डेजर्ट में है। जो आप सहारा डेजर्ट और पूरा डेजर्टेड कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज में ज़्यादातर सब में डेजर्ट है। और ये बसी हुई है पर्शियन गल्फ के किनारे पे। तो जो पर्शियन गल्फ है आपका, वो सारा समुद्र का किनारा पूरे स्टेट कंट्री को लगता है। तो सुबह में अगर आप आबू धाबी से निकलते हैं तो शाम तक आप पूरी कंट्री
कवर कर सकते हैं। अब वेदर वाइज यहाँ का वेदर ज़्यादातर गर्म रहता है, डेजर्ट में हमेशा गर्मी ज़्यादा रहती है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक बहुत गर्मी होती है, नवंबर से लेके मार्च तक प्लेजेंट वेदर होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ के हॉटेस्ट मंथ होते हैं। और नवंबर से मार्च के बीच में जो प्लेजेंट वेदर होता है उस समय यहाँ बरसात भी होती है थोड़ी बहुत। 10 से 12 इंच नेचुरल रेन होती है। अभी थोड़े दिन पहले भी बरसात हुई थी, 2 दिन पहले भी बरसात हुई थी। यहाँ का आप ट्रेडिशनल कपड़े देखेंगे तो जेंट्स जो वाइट गाउन पहनते हैं उसको कहते हैं कंदूरा, और जो लेडीज़ पहनती है उसको कहते हैं अबाया। अब यहाँ पे अरबिक के अलावा हिंदी बहुत अच्छे से लोग बोल समझ सकते हैं। दुबई जो आप स्टेट देख रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग हुई थी एक क्रीक से, दुबई क्रीक से। जो दुबई क्रीक का स्टार्टिंग है, जो आप लोग देरा से आए हो तो हम एक ब्रिज क्रॉस करके आए थे, इन्फिनिटी ब्रिज के ऊपर। एक तरफ हमारे समुद्र था, दूसरी तरफ हमारे ब्रिज के दूसरी तरफ सारा लोकेशन था। तो ब्रिज का एक साइड जो है वो है बर दुबई और एक साइड है देरा, वो है ओल्ड दुबई। आप लोग देरा में हो, देरा में गोल्डसुक है, और बर दुबई में अभी हमने लास्ट पिकअप जो बर दुबई से किया वो है, वहाँ पे मीना बाजार है। ये पूरा मार्केट एरिया है और हार्ट ऑफ द सिटी है। तो ये जो क्रीक है ये 14 किलोमीटर तक नेचुरल है, उसके बाद 13 किलोमीटर इसको एक्सटेंड किया गया है। तो आप इस तरीके से 27 किलोमीटर की क्रीक है, और इसी के मुहाने पे लोग आके बसे थे। 1833 में 800 लोग आके बसे थे, और वहाँ से दुबई की स्टार्टिंग हुई है। आप जितने भी साइट सीन हमारे आएंगे लेफ्ट राइट में, मैं फ्रंट में बैठ के आपको बताऊंगी, आप लोग चेक करती रहिएगा लेफ्ट में राइट में। और हम जहाँ पहला फोटो स्टॉप लेंगे वो है बीच, यहाँ का ओपन बीच, वहाँ पे हम आपको पहला फोटो स्टॉप देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं, हमारे फ्रंट में जो है अबू धाबी है, पीछे की तरफ शारजा है, ओके, और बीच में दुबई है, और हमारे राइट साइड में पूरा समुद्र का किनारा है। अभी हम शेख जायद रोड पे स्टार्ट हो जाएगा, और लेफ्ट और राइट पे आपको जो बिल्डिंग्स नज़र आएंगे वो यहाँ के हाई राइज बिल्डिंग है। आप अगर गौर करेंगे तो जब आप पुराने दुबई में थे वहाँ पे आप लोगों को हाई राइज बिल्डिंग्स इतने नज़र नहीं आएंगे। जैसे जैसे आप न्यू दुबई की तरफ जाएंगे आपको नए बिल्डिंग्स नज़र आएंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आएंगे। अभी हम ट्रेड सेंटर के एरिया में, तो लेफ्ट साइड में जो है ये ट्रेड सेंटर है। जैसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल हुआ, जाइटेक्स हुआ, बहुत सारे इवेंट्स हाँ यहाँ होते हैं। और ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन है। दुबई में मेट्रो है, मोनोरेल है, ट्राम है। तो ये आपके लेफ्ट में है, ये मेट्रो स्टेशन है, ये रेड लाइन का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से एंड तक जाएगा, उसके बाद आबू धाबी की बॉर्डर आएगी और आबू धाबी स्टार्ट होगा। सिर्फ दुबई में ही तीनों चीज़ें अवेलेबल है। उसके बाद में इतिहाद रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है जो 7 एमिरेट स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है। आपके लेफ्ट साइड में आपको नजर आएगा फ्यूचर म्यूजियम। ये जो म्यूजियम है ये लास्ट ईयर 22 फरवरी 2022 को ओपन हुआ है। और यहाँ ये जो इसके ऊपर जो डिज़ाइन आपको नजर आ रहा है ये अरबिक में कैलियोग्राफी की हुई है। और यहाँ के जो राजा हैं उनके कोट्स इस पे बनाए गए हैं। अंदर जब आप जाएंगे तो टिकट्स से एंट्री होती है, 5 फ्लोर का है, और हर एक फ्लोर पे अलग अलग चीज़ बताई गई है कि 2070 में वर्ल्ड में क्या डेवलपमेंट होंगे टेक्नोलॉजी में। जैसे स्पेस में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, हेल्थ केयर कैसा होगा, बायोलॉजी और जो ये फूड हम फार्मिंग में क्या होगा। इस तरीके के अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। अब हम जिस एरिया में हैं इस एरिया का नाम है डाउनटाउन दुबई। यहाँ पे आपको वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग नज़र आएगी जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। आप में से कुछ लोग शाम को बुर्ज खलीफा भी मेरे साथ जाने वाले हैं। तो बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की टॉलेस्ट टावर है और 828 मीटर इसकी हाइट है और 160 फ्लोर्स इसके ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है। 160 फ्लोर्स, इसमें 124 फ्लोर, 125 फ्लोर, 148 फ्लोर, 150 और 152 पे ऑब्जर्वेशन डेक बने हुए हैं। और ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि अगर आप इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे कोई तो 3 महीने में तो सिर्फ ये बिल्डिंग क्लीन होती है एक बार। आपके लेफ्ट में आपको नज़र आएगी, इसमें मोर देन 26,000 ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं। और इसके अलावा ये बिल्डिंग में 1 लाख हाथियों के जितना वज़न है। इसका डिज़ाइन जो डिज़ाइन है वो जो डेजर्ट के फ्लावर्स आते हैं, फ्लोरा एंड फोना, उसके हिसाब से बनाया गया है। और ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में है वर्ल्ड की टॉलेस्ट टावर के नाम से।
148 पे जा सकते हैं? हाँ, आप टिकट को एक्सटेंड करवा के 148 पे भी जा सकते हैं। जनरली टिकट होती है 124 फ्लोर पे। इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि इसकी जो लिफ्ट है हाँ। वो इतनी फास्ट है कि एक मिनट में। 124th फ्लोर पहुंचाने के लिए सिर्फ 59 सेकंड्स लेती है। 59 सेकंड्स में आप 124th फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। अभी हम जिस एरिया में, इसका नाम है बिजनेस वे। यहाँ के जितने भी ऑफिसेज हैं ये बिजनेस वे एरिया में है और मॉर्निंग आवर्स में काफ़ी क्राउडेड और ट्रैफिक होती है इस एरिया में, बिकॉज सारे ऑफिसेज यहाँ हैं, सारे लोग यहाँ आते हैं। मेट्रो में भी काफ़ी रश रहती है और इवनिंग में आपको जब जैसे ऑफिस से छूटते हैं तो फिर से ट्रैफिक हो जाता है। ऑफिस टाइमिंग क्या है यहाँ पे जनरली सर 9 to 6, 8 to 5 इस तरीके से हैं, 7 to 4 10 hours। डिपेंड। हाँ, 8-9 आवर्स ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, इंक्लूडिंग लंच आवर्स। सो अभी जो क्रीक की हम बात कर रहे थे कि जो क्रीक हम बरदुबई से पूरे पीछे से घूम के आती है और बाद में मैन मेड हो जाती है। मैन मेड जो है ये इस ब्रिज के नीचे से निकल के मेन सी में जाती है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाता है दुबई वाटर कनाल। दुबई वाटर कनाल। यस, आपको बोर्ड पे नाम भी दिखेगा। ये जो लेफ्ट में आपको रश नजर आ रही है, सब बिजनेस में जाने वाले लोग हैं। तो ये मॉर्निंग आवर्स में आपको जनरली ये नज़ारा नजर आएगा। अब आप ये नीचे से गए वो ना? हाँ, ये वाटर कनाल है। राइट साइड पे दुबई देखेंगे तो वाटर कनाल। ब्रिज के अलग अलग डिजाइन नजर आएंगे। राइट साइड में आपको अलग अलग ब्रिज नजर आएंगे और यहाँ पे भी क्रूज होती है। यहाँ पे जो क्रूज होती है, डाउ क्रूज क्रीक में होती है, दुबई वाटर कनाल में होती है और मरीना में होती है। 3 जगह पे क्रूज होती है यहाँ पे। अब हम जिस एरिया में जा रहे हैं, आप में से कोई कार में इंटरेस्टेड है? कार्स, एनीबॉडी? गुड। सो आप लोग सबको यहाँ पे लग्जरी कार्स नजर आएंगी। बुगाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, बेंटली, टेस्ला, सारी कार रोड पे भी नजर आएगी और कार के शोरूम भी नजर आएंगे। बुगाटी दिखेगी? किस्मत हुई तो जरूर दिखेगी। मुझे 12 साल में 3 बार दिखी है। बस हाँ तो हमारे किस्मत अच्छे होने चाहिए आज। हाँ, होनी चाहिए सर, जरूर दिखेगी। बुगाटी के लिए ना है स्पेशल। आप बुगाटी के तो शोरूम में चले जाइए, यहाँ पे बुगाटी का शोरूम है। लेकिन आप खड़े नहीं रहेंगे ना। आप अलग से आ जाओ सर, गाड़ी अगर इतनी पसंद है आराम से आइए, घूमिए, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, बुक कराइए, खरीद के ले जाइए। लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट महंगा पड़ जाएगा। अरे सर, बुगाटी का पैसा दे दिया तो एक्सपोर्ट क्या महंगा पड़ेगा। अब इस रोड पे राइट साइड में आपको एक पिक्चर नजर आएगी। आप देखिए, आप इनको जानते हैं क्या? राइट साइड की पिक्चर आप इनको जानते हैं क्या? विक्ट्री का साइन बना है, कहीं देखा है इनको? ये राइट साइड पे आ रहे हैं, ये दुबई के राजा हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, यूएई के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। और नंबर नाम। हाँ, नाम होता है, फिर उनके फादर का नाम होता है, फिर उनकी फैमिली का नाम होता है। राइट साइड में एक और पिक्चर आ रही है। क्या आप ये पिक्चर जानते हैं? कोई आप में से इस पिक्चर को जानता है? नहीं। ये आबू धाबी के राजा है और यूएई के प्रेसिडेंट है, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, आप हमारे राइट साइड में आप देखिए, आपको कार का शोरूम नजर आएगा। ये ऑटो लैंड एक्सोटिक कार्स में बहुत सुंदर सुंदर कार्स आपको दिखाई देगी। अभी फरारी तो ऐसी दिख जाएगी, अभी दिख जाएगी कहीं ना कहीं पे फरारी, लैम्बोर्गिनी। हाँ, nowadays like you know, हर जगह पैसा है ना, सबके पास पैसा है, सब पैसा खरीद पैसा सकते हैं। पैसा बस। आपके पास अगर पैसा है, आपके नाम का मेट्रो स्टेशन करवा देते हैं। क्या बात है। हाँ, सच में आप करवा सकते हैं। यहाँ पे शोभा रियलिटी जो डेवलपर है, उनके नाम से है, बैंक के नाम से है, तो जो स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो स्पॉन्सर हो सकता है वो कर सकते हैं। हाँ, आपको गोल्ड की मारुति दिला देंगे, गोल्ड की फरारी, लैम्बोर्गिनी सब मिल जाएगी, डायमंड की मिल जाएगी। पैसा चाहिए बस। उसकी तो मारा मारी है अभी। तो बस फिर हम लोग देख के खुशी मनाएंगे, किससे फोटो खींच बनाएंगे? के। सही बात है। जरूरी तो नहीं अब ताजमहल पसंद है तो ताजमहल अपना हो जाए, बट देख के खुश तो हो सकते हैं कि ताजमहल देखा मैंने। हाँ, शोभा इज फ्रॉम बैंक, इंडियन ग्रुप है। इंडियन काफ़ी यहाँ पे बिजनेसमैन है, बिजनेस हाउसेज हैं उनके, और काफ़ी नाम है यूएई की कम्युनिटी में। उनका बहुत बिजनेस दिया है यूएई को, और इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप भी इतने अच्छे हैं कि दे डोंट डील इन डॉलर्स, दे डील इन रुपीज एंड दिरहम्स। उनकी डील उसमें होती है, ऐसा मैंने सुना है।
देखा नहीं है, नहीं हमने पढ़ा भी सुना है, हाँ, सही पढ़ा बात है है। मैंने। पहले से तो आप काफी में अच्छे से कोई रिलेशन है। डेजर्ट सफारी जाके आया है? ओ, बहुत सारे लोगों की डेजर्ट सफारी हो गई है। तो डेजर्ट में आपने इतनी हरियाली देखी क्या? नहीं, किसी ने नहीं देखी? अरे ऐसा कैसे हो गया? हमने शायद देखी, कबीर हमने ने, देखी। वो उज्जड़ वीरान है। हाँ वो उज्जड़ वीरान है। अरे सर, वो एक्चुअल जमीन है, ये जो है ये मैन मेड है। हाँ, ये जो प्लांट्स है, ये जो फर्टिलाइजर है, ये सब बाहर से इंपोर्ट होता है। exactly. और ड्रिप इरिगेशन से 24 आवर्स इसको पानी दिया जाता है और इसको मेंटेन किया जाता है, तब जाके ये ग्रीनरी आपको Greenery नजर आती है। ये राइट साइड में व्हाइट कलर की बिल्डिंग फरारी और मसराती का शोरूम। आप देखिए सेकंड फ्लोर, सब फ्लोर तक फरारी है और मसराती कार्स रखे हुए हैं। अब हम बुगाटी का शोरूम देखेंगे, छोटा सा शोरूम है। छोटा सा। हाँ, इधर राइट साइड चलेगा, छोटा में सा बड़ी सी चलेगा। कार का छोटा सा शोरूम बुगाटी दिखाई दिया। बुगाती वो आ गया सामने, बुगाती का कितना शोरूम। सही है, ध्यान से देखना पड़ेगा। सफर करने कितनी हो सकती है? तो ये जो ग्रीनरी है, यहाँ पे यूएई में 10 मिलियन डेट पाम ट्रीज लगे हैं, जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में है। तो ये दुनिया की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट 10 मिलियन डेट पाम ट्रीज, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। और ये दुनिया की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट ग्रीनरी है। तो रास्ते में चलते टाइम प्लीज ध्यान रखिए कि इसको डैमेज ना करें, क्योंकि फाइन आ जाएगा। यहाँ पे फाइन का सिस्टम बहुत तगड़ा है। आप गलती करें, माफी मुश्किल। यहाँ कैमरास लगे हुए, सीधा आपकी पिक्चर आ जाएगी, एक पिक्चर 600 दिरहम की। किसको चाहिए? अगर चाहिए जरूर मिलेगी आपको। 600 रुपया में गवर्नमेंट पिक्चर खींच के देगी आपको। गवर्नमेंट पिक्चर। और जितनी बार बोलोगे उतनी बार खींच के देगी। मोटा मोटा इंडिया का 1.5 लाख। हर हाँ एक मोटा पिक्चर इंडिया का को 1.5 लाख, 600। सही बात है। एक अंदाजा गिन लो केवल। नहीं कोई बात नहीं, तो आप लोग एक बार नहीं, आप बोलो उतनी बार खींच के देंगे। जितनी बार आप मिस्टेक करोगे उतनी बार आपकी पिक्चर आएगी। तो ये यहाँ पे जो है ना, सारा आप देखेंगे, पुलिस आपको कहीं नजर नहीं आएगी। दिख गई बुगाटी? ये बुगाटी नहीं है, पोर्श है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पुलिस आपको नजर नहीं आएगी। आप लोग जितना भी टाइम बिताया होगा, यहाँ सीआईडी होती है जो सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। किसी को भी कहीं भी किसी भी टाइम कोई भी चेक कर सकता है। सीआईडी ऑफिसर्स वो सबको चेक कर सकते हैं, और जो भी रूल्स फॉलो नहीं करते उनको फाइन मिलेगा। आपको काफी टाइम सिग्नल पे कोई चेकिंग करते हुए दिखेगा, वो सीआईडी ऑफिसर्स होते हैं। ऑल सिटी, आप पूरे यूएई में, पूरे और- यूएई में, हाँ, ऑल और कंट्री। उसके अलावा आपको नजर आएगा कि सिग्नल से, रडार से मॉनिटरिंग होती है। हम अगर कुछ भी ना करें और कोई मिस्टेक होगी, सीधा मोबाइल पे आपको फाइन आ जाएगा कि आपका ये वायलेशन है, यू पे दिस फाइन। और फाइन माफ नहीं होता, उस पर इंटरेस्ट लगता है। ओके। आप कंट्री एग्जिट नहीं कर सकते जब तक आपकी फाइल क्लियर नहीं होती। अच्छा, आप लोग में से कौन पहले यूएई आके गया है या फर्स्ट ट्रिप है सबकी? फर्स्ट। ओके, तो अभी जो हम बीच पे जा रहे हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की फोटोग्राफी लीजिए। कोई भी अननोन पर्सन विदाउट परमिशन आप फोटो ना खींचे, क्योंकि प्राइवेसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्राइम है अगर आप किसी का विदाउट परमिशन फोटो खींचेंगे तो। ठीक है, आप अपना फोटो खींचिए, बीच पे जाइए, और प्लीज मेक श्योर ये गाड़ी आपको साफ मिली है, साफ है ये कार, बस। 100%, तो ये ऐसी ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गंदी हुई तो 600 दिरहम डिवाइड बाय ऑल ऑफ यू। ओके, बिकॉज उन्होंने कल ही पूरी बस वॉश करवाई है, तो यहाँ पे चेकिंग होती है, क्योंकि देखिए टूरिज्म डेस्टिनेशन है, आपके बाद दूसरे गेस्ट बैठेंगे और सेम बस पूरा दिन चलेगी। आपको साफ मिली है, किसी और को भी साफ ही मिलनी चाहिए। सही है तो तो ये जो बीच है ये फेमस है यहाँ के होटल बुर्ज अल अरब के लिए। बुर्ज अल अरब यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल है, और यहाँ वो जो होटल है वो मैन मेड आइलैंड पे बना हुआ है। 280 मीटर इनसाइड द सी, और 321 मीटर उसकी हाइट है। 202 कमरे हैं, और हर एक रूम ड्यूप्लेक्स है। अब होटल की खासियत क्या है? उस होटल में जितने भी टॉयलेटरीज है, बाथ फिटिंग्स है, वो 24 कैरेट रियल गोल्ड प्लेटेड है। ये आपके लेफ्ट में आपको नजर आएगा, बोट जैसा होटल है, ये है बुर्ज अल अरब। और इस होटल में अगर आपको एंट्री करनी है तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी या होटल का स्टे लेना पड़ेगा, या फिर इसका टूर पैकेज है 299 दिरहम का, 90 मिनट्स का टूर कराते हैं। 299। हाँ, इस होटल में अंडर वाटर रूम्स बने हुए हैं जो आप रेंट कर सकते हैं और रह सकते हैं। अंडर वाटर रेस्टोरेंट बना हुआ है। 1% 299। हाँ, 1% 1 पर्सन का 299। और अगर आप दुबई में आते हैं
तो इनकी सर्विसेज है कि ये हेलीकॉप्टर से आपको रिसीव करके होटल तक लाएंगे। तो डिपेंड आप क्या बुकिंग करते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज होटल में है। और हाँ? चार्जेस सर इसका ना सीजन के हिसाब से होता है, बट लाख 1.5 लाख तक जाता है, लाख से 1.5 लाख रुपए। कौन सा रूम, कौन सी कैटेगरी, आप कौन से 1% पर नाइट, पर नाइट डबल शेयरिंग। तो अभी जब हम बीच पे जाएंगे आपको ये होटल नजर आएगा। देखिए ऊपर हेलीपैड बना हुआ है और पीछे की तरफ जो बार निकला हुआ है वो स्काई बार है, वहाँ से आपको पाम जुमेरा आइलैंड, वर्ल्ड आइलैंड सब नजर आएगा। तो इस तरीके से ये होटल है। बस हम बीच पे पहुँच गए। बीच बहुत सुंदर है। आप यहाँ 15 मिनट रुकिए, फोटोग्राफी कीजिए, बीच पे घूमिए और बाद में वापस बस में आ जाइए। अगर आप लोग सब लोग टाइम से टूर पूरा करेंगे तो हम थोड़ा टाइम आपको छोटी मोटी शॉपिंग के लिए ले जा सकते हैं, अगर किया तो। वरना तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, आपको सीधा होटल ड्रॉप करना देने के लिए। हाँ, मैं टाइम और गाड़ी दे सकती हूँ अगर आप टाइम फॉलो करोगे तो। तो ये पूरी ट्राई करेंगे हाँ, कि टाइम फॉलो करें। अभी तो सारे लोग टाइम पे ही थे क्योंकि हमने टूर भी ऑलमोस्ट शेयरिंग में टाइम पे ही स्टार्ट किया है। तो आप जब हम आपको ड्रॉप करेंगे वहीं पे गाड़ी खड़ी रहेगी। हाफ डे के लिए सेम गाड़ी है, तो इसका नंबर और पिक्चर आप रखिए अपने साथ कि अगर आगे पीछे पार्किंग होती है तो आपको पता चले कि गाड़ी कौन सी है। ठीक है, फोटो पा लीजिए, ठीक है। सो अभी हम हाँ, बीच पे उतर के फोटो खींचेंगे। बहुत सुंदर बीच है, यहाँ पे बहुत लोग अपना आए हैं रिलैक्स करने के लिए। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब देम। वो अपना एंजॉय करने के लिए आए, आप अपना एंजॉय कीजिए। ये जो एरिया है जुमेरा एरिया, ये यहाँ का लोकल्स का एरिया है। तो यहाँ पे लोकल्स रहा करते थे, अभी थोड़े बहुत अभी भी हैं और ज़्यादातर उन्होंने रेंट आउट कर दिए हैं, तो लोगों ने रेंट पे विला लिए हैं। फिर यहाँ पे आपको ब्यूटी क्लिनिक्स, बुटीक, कैफेटेरियाज और रेस्टोरेंट काफ़ी नज़र आएंगे। तो ये एरिया में हाई राइज बिल्डिंग नहीं है और यहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी भी नहीं है। बाय रोड ही आप यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पे इस एरिया का लुक बाकी सिटी से काफ़ी अलग नज़र आएगा आपको। सो अभी यहाँ का वेदर जो है प्लेजेंट है, आपको फिर भी गर्मी फील होगी बट यहाँ के हिसाब से प्लेजेंट है। सुबह शाम ठंडा रहता है, दिन में थोड़ी बहुत गर्मी होती है। दिसंबर आते आते वो भी चेंज हो जाएगा और 3-4 महीने काफ़ी प्लेजेंट वेदर रहता है। इसलिए टूरिज्म के हिसाब से ज़्यादातर क्राउड इसी टाइम पे आती है। बट अब 365 दिन लोग आने लगे क्योंकि हर जगह एसी लगा हुआ है। बस में एसी है, बस स्टॉप पे एसी है, मेट्रो में एसी है, टैक्सी में एसी है, होटल में, रेस्टोरेंट में। मानसून का कोई तो टाइमिंग फिक्स नहीं रहता ना? नहीं सर, जनरली यहाँ पे विंटर्स में ही बरसात होती है, बट आजकल टेक्नोलॉजी, क्लाउड सीडिंग सब कुछ पॉसिबल है, तो आप जब चाहे तब बरसात करवा सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में फूड मार्ट होता हाँ, है, वैसे यहाँ पे मानसून का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे मानसून का सीजन ही नहीं है, सीजन ही नहीं है। ये डेजर्ट है, यहाँ पे गर्मी होती है। आज किसी का डेजर्ट सफारी है आप में से? डेजर्ट सफारी आपका है? ओके ठीक। तो ये यहाँ का बीच है, सामने प्लेटफॉर्म बना है, वहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। आपके लेफ्ट साइड में बुर्ज अल अरब आपको नजर आएगा। ये जो राउंडिंग है वो ये होटल बाकी के के 2 होटल्स हैं, हाँ बस वो ये दोनों। मरस अल अरब, ये दोनों दूसरे होटल अभी बने और पीछे बुर्ज अल अरब। हाँ, ये दोनों अलग है ना? हाँ, ये दोनों दूसरे होटल है और पीछे बुर्ज अल अरब। और ये तीनों अलग है। हाँ, तीनों अलग है। बस यहाँ सर किंग मतलब यहाँ पे कंपनीज बनी हुई है, कंट्री पूरा किंग का ही है। उन्होंने लोगों को परमिशन दिया है ये सब बनाने की। ओके, अभी टाइम हो रहा है एवरीवन, टाइम इज 10 o'clock। चलो 10 पकड़ लेते, 10:15 तक आप लोग आ जाइए। ओके 10-15 માં સુરી પાછા આવી જવાનું આપણે 15 મિનિટ